आंसू हैं सितारे गम के, हम सियाह पोशों के आंसू हैं सितारे गम के, काली रातों में चमकते हैं सितारों की तरह, ओ इंतहा फैज़ करम की है कि मक़तल से हुसैन, इंतहा फैज़ करम की है कि मक़तल से हुसैन, लाते हैं जौन को भी गोद की पालों की तरह, लाते हैं जौन को भी गोद की पालों की तरह, और टूट के बहते हैं आँखों से गमे शाह में आश्क, टूट कर बहते हैं आँखों से गमे शाह में आश्क, पाए सजाद के फूटे हुए छालों की तरह, पाए सजाद के फूटे हुए छालों की तरह, गैर के तौर तरीक़ों से रज़ी क्या मतलब, गैर के तौर तरीक़ों से रज़ी क्या मतलब, दिल ने अपनाई है शाइस्ता ख़िसालों की तरह, दिल ने अपनाई है शाइस्ता ख़यालों ख़िसालों की तरह, मुजरई सुर्खिए खून उड़ के गुलालों की तरह, रह गई दामन गर्दों पा मिसालों की तरह, सलाह देंगे। हाज़िर मोहतरम, एक बार फिर इंतहाई मौजूदाना तौर पर गुजारिश करूँगा, अभी भी काफ़ी जगह है, इस वक्त कोशिश करेंगे थोड़ा आगे पीछे भी आएँ, बाहर काफ़ी लोग जो खड़े हुए हैं और गराज जो पूरा ठंडा है, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे अगर इस बराबर के रूप में चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप न जा सकते हो इसलिए मैं जा सकता हूँ, अगर मोहम्मद वाले काफ़ी जगह है, यहाँ पर काफ़ी जगह है, थोड़ा सा पीछे से लोग उठते आ जाएंगे, ज़हमत करवानी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
آپ حضرات آج کی اس مجلس رضا سے بخوبی واقف ہیں. گزشتہ تقریباً 18 سال سے سلسلہ یہاں جاری ہے اور اپنے آپ میں ایک تاریخ نوعیت یہ رکھتا ہے. آج بھی اس مجلس اعضاء کی نوعیت میں اور ایک تاریخ اضافہ ہو رہا ہے جو صرف ایک جملے میں عرض کر دوں. اس سے قبل میں نے اس بات کو تفصیلاً بتایا تھا کہ اس وقت یہ مجلس اعضاء دنیا کے کونے کونے میں بذریعہ القائم ٹی وی نشر کی جا رہی ہے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں بانی مجلس کی جانب سے اور مومنین ٹورانٹو کی جانب سے کہ ٹورانٹو کی یہ پہلی مجلس پوری دنیا میں اس وقت بذریعہ ٹی وی بذریعہ نیٹ نشر ہو رہی ہے. حاضرین محترم، کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد میں عرض کر دوں گا. اس وقت میری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تمام شہدائے اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے بانی مجلس کے ان مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاصی تلاوت فرمائیں. ان کے نام ہیں سید یاور حسین عابدی ابن سید مرتضیٰ حسین عابدی، والیہ بیگم بنت سید شبیر حسین عابدی، غلام محمد نقوی ابن سید ناظم حسین نقوی، ظہیر النساء بنت سید شبیر حسین عابدی، مرضیہ خاتون بنت سید شبیر حسین عابدی، معصومہ بیگم شمع بنت سید یاور حسین عابدی اور عامر علمدار ابن محمد علمدار حسین رضوی. بسم اللہ. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ حسین. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں قبلہ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کو زحمت قیام زحمت دوں جو رونوں کا پروفیسر نمبر ہوں. لیکن اس سے قبل چند جملے آپ حضرات ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں. کوئی اور جملہ اس سلسلے میں ادا کرنا، کوئی اور بات کہنا، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. ایک عرصے سے قبلہ مسلسل یہاں تشریف لا رہے ہیں اور یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور آپ حضرات کی کا خلوص ہے ان کے ساتھ کہ خاص طور پر ایام اعظام میں اور جب کبھی محرم جب کبھی رجب وغیرہ کا مہینہ آتا ہے تو اکثر مومنین یہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا تشریف لا رہے ہیں. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس قدر آپ حضرات کے درمیان مقبول ہیں. ڈاکٹر صاحب نے سال گزشتہ بھی اسی مجلس میں اس مجلس سے خطاب فرمایا تھا بحیثیت ایک شاعر اہل بیت کے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاعری ایک منظوم خطابت ہے. منظوم خطابت وہ سال گزشتہ اپنی مکمل کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ہر لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں اور اس کے علاوہ نثر نے شاعری کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا ہے. اس بات سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر نثر نے شاعری کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا ہے اور وہ شاعر اہل بیت جو آج شعراء اہل بیت میں صفحہ اول میں سر فہرست نظر آتا ہے، وہ نثری خطابت میں بھی اسی قدر قدرت اور دسترس رکھتا ہوگا جیسے کہ وہ اپنی منظوم خطابت میں رکھتا ہے. میں آپ تمام حضرات کی جانب سے خصوصی طور پر بانی مجلس اور ان کے اہل و عیال کی جانب سے قبلہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ان کا مشکور و ممنون ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی مؤدبانہ طریقے پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ رونق قبول سے بہتر ہوں اور آپ حضرات سے نثری اور منظوم دونوں خطاب فرمائیں. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی المکی المدنی الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات بر محمد عزیزان گرامی، ارباب شکر و نظر، صاحبان دین و دانش، غلامان حیدر کرار، عزاداران حسین، اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ابھی قبلہ نے فرمایا ہے کہ ذکر اہل بیت نظم اور نثر دونوں ذریعوں سے اور اظہار کے یہی دونوں ذریعے ہیں۔ ذکر اہل بیت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس وقت یہاں فرش ادا پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی فرش ادا ہے جسے سب سے پہلے حضرت زینب کبریٰ کی فرمائش پر سید سجاد نے بچھایا اور یہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، ہر منظر حیات سے ہٹتا گیا یزید، سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید، چھاتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید، شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید، اتنے ستارے بھی نہیں شرخ مبین پر جتنی امام بارگاہ ہیں زمین پر۔ جیسا کہ بتایا ابھی قبلہ نے کہ ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین، یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں ہم، اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں۔ کوئی زمین ہو، کہیں کوئی ملک ہو تو عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا نثر میں اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نبی کو مبعوث کیا ہے، رسول کو رسول بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے دین حق اور کتاب ہدایت کے ساتھ، تاکہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا جائے اور سارے ادیان جو ہیں وہ اسلام میں آ کے تحلیل ہو جائیں، سب مسلمان بن جائیں، ہر طرف ایک ہی دین رہ جائے۔ اس دین کا نام قرآن نے اسلام بتایا ہے کہ سارے دین مل جائیں گے، خواہ یہ عمل مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، مگر یہ ہو کے رہے گا، مگر یہ ہو کے رہے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جو مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا قائل ہے کہ ایک نہ ایک دن ساری دنیا میں اسلام پھیل کے رہے گا، پورے کرۂ ارض پر پرچم اسلام لہرائے گا، پرچم اسلام پورے کرۂ ارض پر لہرائے گا،
मगर अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो इस्लाम कौन सा होगा, इसलिए कि हमारे सामने इस्लाम की इतनी शक्लें आ गई हैं, इतनी शक्लें आ गई हैं कि उनका शुमार भी आसान नहीं है। सब लिबास पहने हुए भी दिखाई देते हैं, सूफ टोपियाँ पहने हुए भी दिखाई देते हैं, सफ़ेद रूमाल कांधे पर डाले हुए दिखाई देते हैं, टूटियाँ चिपकाए हुए सरों पर दिखाई देते हैं, मज़ारों पर कव्वाली करते हुए मुसलमान भी दिखाई देते हैं, कब्रों पर चादरें चढ़ाने वाले भी मुसलमान दिखाई देते हैं, उछल कूद करने वाले मुसलमान भी दिखाई देते हैं, मस्जिदों में बम फेंकने वाले भी मुसलमान दिखाई देते हैं, इमाम बारगाहों में फायरिंग करने वाले भी मुसलमान दिखाई देते हैं। ये कह के ये हमारी इबादत है, ये कह के कि हमारी इबादत है। बेगुनाहों को ज़िबा करते हुए भी दिखाई देते हैं कि ये हमारी इबादत है। वो भी दिखाई देते हैं जो कहते हैं या मोहम्मद मत कहो वरना शिरक हो जाएगा, वो भी हैं जो कहते हैं या अली मत कहो वरना शिरक है, बिदअत है। पुकारना बिदअत है इसलिए कि अब मोहम्मद इस दुनिया से जा चुके हैं, अब लौट के आने वाले नहीं हैं, अली इस दुनिया में है नहीं, अब आने वाले नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुवहिद हैं, हमको सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। अगर किसी को पुकारा तो वो सही नहीं है, वो मुसलमान भी हैं, वो भी बेचारे हमारे जैसे हैं कि ज़रा ठोकर लगी तो अली याद आए, ज़रा मुसीबत पड़ी तो अली याद आए। हमने कहा या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। तो इतने मुसलमान हैं, आखिर कौन सा इस्लाम दुनिया में छाएगा और कौन सा ये बेगुनाहों को कत्ल करने वाला तालिबानी इस्लाम, ये सिपाही साहबा वाला इस्लाम, ये देवबंद वाला इस्लाम, ये बरेली वाला इस्लाम, ये लखनऊ वाला इस्लाम, ये सऊदी अरब वाला इस्लाम, आखिर कौन सा इस्लाम, ये ईरान वाला इस्लाम। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, तमाम मुसलमानों की खिदमत में दो चार वाली बात करता हूँ। कौन सा इस्लाम होगा जो सारी दुनिया में फैल जाएगा? एक ही इस्लाम तो होगा ना जो सारी दुनिया में फैलेगा और सारे अदियान की जगह पर खुद कायम हो जाएगा और छा जाएगा दुनिया में। वो इस्लाम कौन सा होगा? इतने इस्लाम हमारे सामने हैं, वो कौन सा होगा? तो बीच में आ गई ये बात, कुछ लोग कहते हैं या मोहम्मद मत कहो। मैं चूँकि शायर भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ज़िक्र आले मोहम्मद पहले शेरी के ज़रिए शुरू हुआ और साहिबान नज़र हैं जो तारीख़ पर नज़र रखते हैं वो जानते होंगे कि पहली मजलिसें जो सैयद सज्जाद के ज़रिए से कायम हुई हैं, हमारे चौथे इमाम के ज़रिए से कायम हुई हैं, वो मरसियों से कायम हुई हैं। और उस दौर के जो मरसिया खां थे वो हज़रत फरजदक थे, हज़रत देबल थे, हज़रत कुमैत थे, कुमैत असदी, ये वो लोग थे कि जो आते थे। और ये अभी इन्होंने पढ़ा है सलाम जाफरी साहब ने, ये वो तरीक़ा ज़िक्र है कि जिसकी तौसीक़ सैयद सज्जाद ने की है, जिसकी तौसीक़ सैयद सज्जाद ने, कोई मामूली चीज़ नहीं है। मगर अब ज़िक्र आ गया है तो मैं अभी आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ शेरों के ज़रिए। असल में ये मजलिस जो है मुर्तज़ा आबदी सल्लमहू जो हैं उनका मिजाज मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या है। उन्होंने मजलिस पढ़ने के लिए मुझे हुक्म दिया, मैं अपने साथ मरसी की किताब भी लाया था कि हो सकता है वो कहते मरसिया को तो मैंने एक तरीका निकाला कि आपसे दफे में भी गुफ्तगू करूँगा और शेरों में भी गुफ्तगू करूँगा। जो लोग कहते हैं या मोहम्मद मत कहो, अब मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं, उनकी खिदमत में एक कथा पेश है कि खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर क्यों ये काम करते हो? खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर क्यों ये काम करते हो? नबी सदाएं हमारी अगर नहीं सुनते तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हैं? जवाब देते हैं सवालों की तरह, तो ये सवाल है, ये सवाल में जवाब नहीं दे रहा हूँ कि नबी दुनिया से जा चुके हैं और हमारी आवाज़ नहीं सुनते। मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि अगर सदाएं हमारी नबी नहीं सुनते तो फिर नमाज में
अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो बगैर इस सलाम के नमाज पढ़ते नमाज होगी ही नहीं, नमाज होगी ही नहीं। तो जब सलाम करते हैं तो इसका मतलब है कि नबी हमारी आवाज़ सुनते हैं, और जब आवाज़ सुनते हैं तो जवाब भी देते होंगे। उन्होंने हमसे कहा जो कोई सलाम कर दे तो जवाब देना। अगर हमारे सलाम का जवाब नबी दे देंगे तो इससे बड़ी दौलत हमारे पास और क्या होगी। नबी हमारे सलाम का जवाब दे दे, दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। और उनकी खिदमत में अर्ज है, जो कहते हैं या अली मदद कहना बिदात है, इसलिए कि हम मुवहिद हैं। मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। उनकी खिदमत में भी 4 मिसरे मैं पेश कर दूं। गुनाहगार हैं हम, हौसला दुआ का नहीं। गुनाहगार हैं हम, हौसला दुआ का नहीं। सलीका बार गए हक में इल्तिजा का नहीं। पुकारते हैं अली को जो अपनी मुश्किल में, पुकार सलीका बार गए हक में इल्तिजा का नहीं। गुनाहगार हैं हम, हौसला दुआ का नहीं। पुकारते हैं अली को जो अपनी मुश्किल में, तो शरीक अपना बनाते हैं हम, खुदा का नहीं। फिर तो सुन लीजिए, बात लोगों की समझ में आया होगा। देखिए, हमसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिर्क है। अब आप अली को पुकारते हैं तो शिर्क करते हैं। मैंने उनका जवाब दिया है कि हम अली को पुकारते हैं, ये नहीं कहते कि मौला आइए, अल्लाह से ये काम नहीं होता, जाके मदद कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह से पूरी दुनिया कंट्रोल नहीं हो रही, मौला साथ दे दीजिए। हम तो अपने लिए बुलाते हैं। अपने लिए किसी को शरीक बनाना ये शिर्क नहीं है, नहीं है, नहीं है। पैगंबर ने दुआ की, पालने वाले अली को मेरा शरीक बना दे। हज़रत मूसा ने दुआ की, पालने वाले हारून को मेरा शरीक बना दे। और नबी अपना शरीक ढूंढते रहे। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि तो इतने इस्लाम हैं, वो कौन सा इस्लाम है जो फैलेगा? वो इस्लाम कौन सा है कि जो इस्लाम फैलेगा? अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने नौजवानों को समझाने के लिए कि इस ऐसे मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पैगाम अहले बैत लेके यहाँ आए हैं, यानी अल्लाह ने पहुँचाया है, ये भी समझ लीजिए। यानी अल्लाह ने पहुँचाया है, हर काम अल्लाह करता है। मैं उस तरह की फिक्र नहीं रखता जिस तरह से आप मुसलमान रखते हैं। एक साहब ने लिखा अपनी किताब में कि हज़रत अली खाने काबा में पैदा हुए, और उसके साथ साथ लिखा इत्तेफाक से खाने काबा में पैदा हुए। इत्तेफाक से खाने काबा में पैदा हुए, तो अब इत्तेफाक से खाने काबा में पैदा हुए, इत्तेफाक से आगोश नबूवत में परवरिश पाई, इत्तेफाक से नबी के पीछे चलते रहे, इत्तेफाक से उसी नस्ल में पैदा हुए जिसमें नबी पैदा हुए थे, इत्तेफाक से आँख खोली तो नबी का चेहरा देखा, यानी पैगंबर की आगोश में आँख खोली। इत्तेफाक से पैगंबर ने अली की आगोश में आँख बंद कर ली। इत्तेफाक से दावत ज़ुल अशीरा का सारा इंतज़ाम अली ने किया। सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक से शब हिजरत पैगंबर ने अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया, और इत्तेफाक से तमाम अमानतों का अमानतदार बना दिया कि तमाम कुफ़ार की अमानतें दे के कुफ़ार को तब वापस आना। और इत्तेफाक से जब सारे मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाने लगे तो सारे मुसलमान ख़त्म हो गए। अब अली का भाई बनने के लिए कोई बचा ही नहीं, और नबी का भाई बनने के लिए कोई बचा ही नहीं। नबी ने कहा या अली, तुम ही मेरे भाई हो इस दुनिया में भी और आखिरत में। ये सब इत्तेफाक से हो रहा है। इत्तेफाक से बद्र में सबसे पहली तलवार जो बुलंद हुई अली की। इत्तेफाक में वो हद तक में जो सब आखिर तक चलती रही तलवार वो अली की थी। इत्तेफाक से नबी के सीना से पर अली हो गए। इत्तेफाक से अमर इब्न अब्दोद को कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मरहब को मार दिया। इत्तेफाक से अंतर को कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से दरे खैबर उखाड़ लिया। इत्तेफाक से सूरह बरात लेके गए। इत्तेफाक से नबी मुबाहले में लेके गए। इत्तेफाक से पैगंबर ने दावत ज़ुल अशीरा में अली के बाजुओं को थामा। पहला खिताब जब पैगंबर ने किया है, पहली बार जब अपनी नबूवत का ऐलान किया है, पहली बार जब उस कौम के सामने आए हैं, पहली बार पैगाम जो दिया है उसमें अली के बाजुओं को थाम के उठाया, पहचान लो ये मेरे बाद मेरा वसी भी है, मेरा जानशीन भी है, मेरा वजीर भी है, मेरा शरीक भी है, मेरा खलीफा भी है।
मेरा कायम मकाम भी है। और आखिरी खिताब जो किया है उम्मत से गदीर खुम में, उसमें भी अली के बाजुओं को थाम के उठाया, पहचान लो मन कुंतो मौला फहादा अली मौला, जिसका मौला मैं हूँ उसका इत्तेफाक 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 इत्तेफाक। मैं कहता हूँ कि ये सूरज जो निकल आता है रोज इत्तेफाक से निकलता है, ये शाम जो होती है इत्तेफाक से होती है, सुबह जो होती है इत्तेफाक से होती है, ये हवाएं जो चलती है इत्तेफाक से चलती हैं, ये घटाएं जो बरसती हैं वो इत्तेफाक से बरसती है। तो कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई इस तरह गौर करो, इतनी तरतीब से जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो इत्तेफाक नहीं है, ये आयात इलाही है। समझने वालों अगर समझना चाहे आदमी तो बड़ी आसानी से समझ लेगा कि कुदरत हमें बता रही है। क्या बता रही है इसको यहाँ रोक दीजिए। अब आइए फिर वहाँ सवाल ये है कि इतने मज़ाहिब है, कौन सा मजहब फैलेगा, कौन सा मजहब सारी दुनिया में छा जाएगा। वक्त नहीं है और एक मजलिस में सारी बातें कहीं नहीं जा सकती। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि कौन सा मजहब फैल रहा है इन तमाम मज़ाहिब के बीच में, मगर फ़िलहाल ये मेरा मौजू नहीं। किसी मजलिस में अगर मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू हो जाएगी। मुझसे एक साहब ने कहा कि एक बहुत बड़े पढ़े लिखे थे एक ज़माने में, उनके साथ बैठे हुए तो उन्होंने दावत की थी, शिया नहीं थे मगर वो अपने को दूसरे फ़िरक़े से वाबस्ता नहीं करते थे, अपने को बिल्कुल आज़ाद फ़िक्र कहते थे कि मैं आज़ाद फ़िक्र मुसलमान हूँ। तो उन्होंने उनके साथ कुछ और लोग भी आए थे, मुअज़्ज़िनीन, मजहबी रहनुमा, माशाअल्लाह लंबी लंबी दाढ़ियाँ, कुछ पगड़ी भी बांधे हुए थे और कांधे पर रुमाल भी रखे हुए थे। तो खाने से पहले उन्होंने कहा कि हमारा क़याम आज तक शिया मजहब का रीज़न समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि भाई खाने वाला निकलवाइए, क्या फायदा आपने मालूम करने नहीं। मैंने फला से पूछा, फला उलमा का नाम लेना शुरू किया। वो उलमा के जो मेरे नज़दीक मोहतरम है कि उनसे पूछा मगर कोई इस्लाम शीयत का रीज़न नहीं दे सके। मुझे समझ नहीं आता शिया मजहब क्यों निकला है, कहाँ से निकला है, इसका रीज़न क्या है। फिर मैंने कहा कि ये वक्त नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करने का, खाना निकलवाइए। इतने वो कुछ उधर के लोग थे, उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेर के उन्होंने कहा हाँ भाई शिया मजहब का रीज़न क्या है। तो मैंने देखा कि अकेला हूँ मगर वाजिब हो गया है कि बता दूँ, और कभी कभी वाजिब हो जाता है। आप लोग भी इसके लिए तैयारी किए रहा कीजिए, मगर ऐसी बात नहीं कि मजलिस में सुन लिया और समझ लिया कि भाई यही तारीख़ है, यही हकीकत है। अगर कभी फंस गए तो शर्मिंदगी होगी आप, इसलिए कि ज़ाकिरीन तरह तरह के आते रहते हैं इस मिंबर पे, माफ़ कीजिएगा, तरह तरह के आते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अगर उनकी हर बात को आप सही समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। समझा आपने। तो ऐसे वाक़यात हैं बेशुमार, मगर उसकी तरफ इशारा नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि रीज़न क्या है। तो जब मैं आजिज़ आ गया तो मैंने कहा अच्छा शिया मज़हब का रीज़न मालूम करना चाहते हैं आप, तो शिया मज़हब को जानते हैं आप? कह रहे हैं हाँ जानते हैं। हमने कहा अगर जानते तो रीज़न कभी न पूछते, पहले शिया मज़हब समझ लीजिए। कह रहे क्या है शिया मज़हब। हमने कहा हम शिया लोग जो हैं वो वहदहु ला शरीक के कायल हैं, खुदाए वाहिद यकता के कायल हैं। हम ये जानते हैं कि वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही ज़मीन का मालिक है, वही आसमान का मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं है। कहेंगे ये तो हमारा अक़ीदा है। हमने कहा रीज़न चाहिए, कहेंगे नहीं इसका रीज़न नहीं चाहिए, तो हम भी मानते हैं। हमने कहा तो हम इसके कायल हैं कि उस खालिक़ कायनात ने जो हम सब का पैदा करने वाला है, हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया को मबूस किया है, और आखिरी नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि जो लोग हैं वो थोड़ा आगे आ सकते हैं।
हमें दीवार मिले तो हम भी खरीदेंगे इसलिए हम दीवार में चल रहा कि है मैं इसको हाथ में संभाले पता नहीं क्या हुआ इसमें ये बंद हो गया मेरा कोई किसी नहीं इसमें इतना मैंने कहा कि हम खुदा वाहिद यक्ता के कायल हैं तो कहने लगे ये तो हम भी मानते हैं। हमने कहा रीज़न कहने लगे नहीं। हमने कहा तो हम इसके कायल हैं कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया को मबूस किया है। आखिरी नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। रीज़न चाहिए कहने लगे नहीं है तो हम भी मानते हैं। हमने कहा तो हम इसके कायल हैं अल्लाह ने हिदायत इंसानी के लिए 4 किताबें नाज़िल की, ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान। कुरान आखिरी किताब है। अब इसके बाद क़यामत तक कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं है। रीज़न चाहिए इसका कहने लगे नहीं ये तो हम भी मानते हैं, ये तो हम भी मानते हैं। हमने कहा अल्लाह ने यौम जज़ा कायम किया है, क़यामत का दिन, उसे यौमुद्दीन भी कहते हैं, जहाँ हर इंसान को खड़ा होना पड़ेगा मालिक की बारगाह में और अमल के एक एक ज़र्रे का हिसाब देना होगा। और नेक आमाल की जज़ा जन्नत है और बुरे आमाल की सज़ा जहन्नम है। कोई जहन्नम में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा। ये हमारा अक़ीदा है हम शियों का। रीज़न चाहिए कहेंगे नहीं ये तो हम भी मानते हैं। ये तो हमने कहा कि अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाया, हूरों को भी पैदा किया, फरिश्तों को भी पैदा किया है। कहने लगे ये हम भी मानते हैं। हमने कहा रीज़न चाहिए कहने लगे नहीं। हमने कहा अच्छा अमाल में आ जाइए। हमारे मज़हब में सबसे पहला अमल नमाज है। हमारे यहाँ मज़हब में सबसे पहला अमल जो है नमाज है, सलात, उसे सलात भी कहते हैं। हमारे यहाँ 5 नमाज़ें वाजिब हैं, 5 नमाज़ें वाजिब हैं। रीज़न चाहिए कहने लगे 5 ही नमाज तो हमारे यहाँ भी वाजिब है। हमने देखिए वक्त नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाजें वाजिब है, इसलिए कि बिलावजा बहस बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। हमने कहा 5 नमाजें वाजिब है कहने लगे वो तो हमारे यहाँ वाजिब है। हमने कहा रीज़न चाहिए कहने लगे नहीं। हमने कहा 5 नमाज में ज़ोहर की 4 रकतें हैं, असर की 4 रकतें हैं, मगरिब की 3 रकत है, इशा की 4 रकतें हैं, सुबह की 2 रकतें हैं। कहने लगा ऐसी हमारे यहाँ है। हमने कहा हमारे यहाँ फिर नाफिला है, ज़ोहर की 8 रकतें हैं, असर की 8 रकतें हैं, मगरिब की 4 रकतें हैं, नमाज शब 8 रकतें हैं, शफा 2 रकत है, वितर 1 रकत है। कहने लगे ये सब तो हमारे यहाँ भी है। हमने कहा रीज़न चाहिए कहने लगे नहीं। तो हमने कहा फिर हमारे यहाँ दूसरी इबादत जो है वो रोज़ा है। रोज़ा रमज़ान का महीना 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, हम सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक न कुछ खाते हैं न पीते हैं और काम भी तर्क कर देते हैं। इसको हम रोज़ा कहते हैं, ये हमारा मज़हब है। रीज़न चाहिए चल गए नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी है ऐसे ही, बिल्कुल हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही सेम। हमने कहा अच्छा तो उसके बाद हज के बाद हमारे यहाँ हज होता है। हम मीकात में पहुँचने के बाद एहराम बांधते हैं। एहराम बांधने का मतलब ये कि अपने सिले हुए कपड़े उतार देते हैं, एक चादर लपेट लेते हैं, एक कांधे पर डाल लेते हैं और उसके बाद नियत करते हैं। नियत करने के बाद तलबिया कहते हैं। तलबिया कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए काबे की तरफ जाते हैं और वहाँ खाने काबा में पहुँच के 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर को तवाफ़ कहते हैं। अब एक तवाफ़ हो जाता है, उसके बाद नमाज तवाफ़ पढ़ते हैं, फिर सफ़ा और मरवा पर जाते हैं, वहाँ सही करते हैं, सफ़ा से मरवा पर, मरवा से सफ़ा पर 7 चक्कर लगाते हैं। उसके बाद तकसीर करते हैं, ज़रा सा बाल काट दिया या नाखून काट दिया और इसके बाद हमारा ये हज जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे दिन मिना में और अरफात में जाना होता है, तो उसके बाद दूसरे दिन जाते हैं अरफात में और सारा दिन अरफात में इबादत करते हैं और एक ही अज़ान दे के दोनों नमाज पढ़ते हैं अरफात में, ज़ोहर की भी और असर। और उसके बाद फिर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं, वहाँ भी एक ही अज़ान में मगरिब भी पढ़ते हैं और इशा भी पढ़ते हैं। उसके बाद 10वीं ज़िलहिज को हम पहुँच जाते हैं मना में और वहाँ शयातीन को किंकरियाँ मारते हैं।
शयातीन को किंकरियाँ मारते हैं, बड़ा शैतान है, मझला शैतान है, छोटा शैतान है, भीड़ बहुत होती है, और उसके मारने के बाद अब गोया एक काम हो गया, अब कुर्बान गाह में जाते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं, और कुर्बानी पेश करने के बाद अब सर मुड़ाते हैं, तो हज जो है हमारा पूरा हो गया। अब इसमें आपको जो एतराज़ हो बता दीजिए, रीज़न हम आपको दे देंगे। कहने लगे ऐसे ही हज तो हमारे यहाँ भी होता है, हम भी मीकात पे हम मानते हैं, हम भी तलबिया कहते हैं, हम भी तवाफ करते हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हम भी शयातीन को कंकरियाँ पत्थर मारते हैं, सारा काम तो हमारे यहाँ। हमने कहा कि रीज़न चाहिए, कहने लगे नहीं। हमने कहा अब तक तो आप कह रहे थे कि शिया मज़हब का रीज़न मालूम नहीं है, अब मैं अपना मज़हब बता रहा हूँ तो आप कहते हैं ये हम भी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं, हमें रीज़न नहीं चाहिए। अच्छा आगे बढ़ जाइए, हमारे यहाँ ज़कात निकलती है, ज़कात कभी 5वां निकलता है, कभी 10वां, कभी 15वां, कभी 20वां आमदनी पर, और कभी बचत पर। कभी आमदनी पर निकालते हैं हम, कभी बचत पर निकालते हैं। ये आप लोगों को बता दें कि खुमुस जो है वो ज़कात से अलग कोई चीज़ नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। खुमुस तो मकदार का नाम है। अल्लाह ने कहा है खाने पीने के बाद जब बच जाए तो 5वां हिस्सा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह और रसूल के नाम पर निकाल देना, उसको खुमुस कहते हैं। खुमुस मकदार का नाम है। खम्स कहते हैं 5 को अरबी में, मुखम्मस कहते हैं 5वें को अरबी में, तो असल तो वही ज़कात है। तो हमने कहा ज़कात हम निकालते कभी 5वां, कभी 10वां, कभी 15वां, कभी 20वां, कभी 40वां, अलग अलग उसकी जगह है और उसके हुदूद मुअय्यन है। रीज़न चाहिए, कहने नहीं हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। हमने कहा हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो एक कान में अजान कहते हैं, एक कान में अकामत कहते हैं, रीज़न चाहिए, कहने नहीं हमारे यहाँ भी यही होता है। हमने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज इस तरह कायम होता है कि औरत की तरफ से ईजाब होता है और मर्द की तरफ से कबूल होता है, बीच में महर होता है, शाराना भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। कहने लगे कि यही तो हमारे यहाँ। हमने कहा रीज़न चाहिए, कहने नहीं। हमने कहा कि अगर शौहर तिलाक देना चाहता है तो तिलाक देने के बाद 4 महीने तक बीवी को अपने घर में उसे रखना पड़ेगा, खाना पीना खिलाना पड़ेगा, और 4 महीने के अंदर अगर वो तरजीह चाहे तो फिर उसे अपनी बीवी बना ले। अब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अमल 3 मरतबा जब दोहरा लेगा तो तिलाक बाइन हो जाएगी। तो कहने लगे यही तो हमारे यहाँ है, यही हमारे यहाँ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ एक ही नशिस्त में 3 मरतबा अगर तिलाक कह दिया जाएगा तो शायद उसको ना मानते रहे हो तो तिलाक बाइन हो जाएगा, इसलिए उसकी बहस ही नहीं आई। तो हमने कहा ये है, हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, उसकी तदफीन होती है, तदफीन के बाद नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा दुआ है। कहने लगे यही हमारे यहाँ है। हमने कहा भाई अब अभी कुछ देर पहले आप सारे लोग कह रहे थे शिया मज़हब का रीज़न नहीं मालूम, शिया मज़हब का रीज़न नहीं मालूम, शिया मज़हब का रीज़न नहीं मालूम। रीज़न तो बता दिया, सारा मज़हब तो हमने बता दिया। अब आप कहते हैं रीज़न इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए। आखिर अब हम क्या करें? अब काहे का रीज़न दे? मज़हब तो आपके सामने पूरा पेश कर दिया, शुरू से लेके आखिर तक, अकायद भी और अमाल भी। कहने लगे फिर हम में तुम में फ़र्क क्या है? हमने कहा ये ना पूछिए, ये ना पूछिए। कहने नहीं बताओ। हमने कहा मज़हब में तो कोई फर्क नहीं है, मज़हब में तो कोई फ़र्क नहीं है, मगर एक बात ज़रूर है, हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आँख बंद होने के बाद उम्मत ने अल्लाह की रस्सी छोड़ दी। उसका रीज़न जो है वो हम कुरानी से बता देते हैं आपको। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो, अगर छोड़ोगे तो सब मुंतशिर हो जाओगे। तो ये इतने मुंतशिर जो हो गए हैं तरह तरह के लोग, इसलिए कि अल्लाह की रस्सी उन्होंने छोड़ दी। कहने लगे कहते तो सही हो तुम, आप फरमाते तो सही हैं, यकीनन अल्लाह की रस्सी छोड़ दिए जब ये इतने टुकड़े हो गए हैं, और कुरान यही कहता है अल्लाह की रस्सी छोड़ा तो टुकड़ों में बढ़ जाओगे। तो हमने कहा हाँ, बस ये है कि आप पता नहीं अल्लाह की रस्सी को क्या समझते हैं। हम जो जिसको अल्लाह की रस्सी समझते हैं शायद आप न समझते हो, उसके लिए रीज़न हम दे सकते हैं। कहने लगे अब अल्लाह की रस्सी क्या है? हमने कहा अल्लाह की रस्सी न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात। अल्लाह की रस्सी का मतलब है उसका एक सिरा अल्लाह की तरफ है, एक सिरा बंदों की तरफ है। एक सिरा अल्लाह की तरफ है, एक सिरा बंदों की तरफ है। और उस अल्लाह ने कहा है उसको छोड़ दोगे तो मुंतशिर हो जाओगे, लिहाजा हम मुंतशिर हो गए हैं। अगर हम कह देते हैं तो आप लोग खफा हो जाते हैं, आप लोग खफा हो जाते हैं।
तो कहने लगे वो रस्सी है क्या? मैंने कहा देख लीजिए। मौलाना मौदूदी साहब ने कहा पूरा दीन अल्लाह की रस्सी है। दीनदार तो बहुत है मगर मुंतशिर होते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा नमाज अल्लाह की रस्सी है। नमाज अल्लाह नहीं पढ़ता, हम ही पढ़ते हैं, अल्लाह की रस्सी हो नहीं सकती। तो कहने लगे फिर अल्लाह की रस्सी है क्या? हमने कहा कुरानी से पूछ लीजिए, कुरानी से पूछ लीजिए। इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यक़ीमुनस सलाता व मिम्मा व यक़ीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है, और तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है। दे दीजिए मोहम्मद वाले। मुझे अभी भी टेक्स्ट मैसेज मिला है कि बाहर काफ़ी तादाद में मुमिन खड़े हुए हैं। जितना आप आगे आ सकते हो आगे। टेक्स्ट नहीं है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये रूम बराबर खाली है, अगर तो बच्चे इसमें चले जाएँ तो बेहतर होगा। कोशिश करें जो जितनी भी आप जगह बना सकते हो बाहर घूमने के लिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बड़ों को बाहर ज़्यादा मैं जहमत नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ मेरे पास घड़ी तो वैसे नहीं है, घड़ी दिखाई नहीं देती। बहरहाल तो मैंने कहा कि वो रस्सी जो है वो विलायत है। वो रस्सी विलायत के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, इसलिए कि इंसानों को जोड़ने के लिए विलायत के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जोड़ दे। इंसानों को जोड़ने के लिए विलायत के अलावा कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जोड़ दे। आप लाख कहिए, आप उलमा खोलिए, उलमा बैठे हुए हैं हमारे सामने जो उस वक्त बैठे हुए थे, इनसे कहिए कि आप लोग सब नमाज पढ़िए, मगर सब एक साथ रुकू कीजिएगा, एक साथ सजदा कीजिएगा, एक साथ कुनूत पढ़िएगा, एक साथ जिक्र कीजिएगा, एक साथ कूद, एक साथ क़याम, सब कीजिएगा। आप खड़ा कर दीजिए, सब आलिम दीन हैं, सब नमाज के मसाइल से वाकिफ़ हैं सब, मगर एक मिनट के बाद आप देखेंगे तो कोई रुकू में नज़र आएगा, कोई क़याम में नज़र आएगा, कोई सजदे में नज़र आएगा, सब मुंतशिर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप उन सबको इमाम बना दें, 10 इमाम आगे खड़ा कर दें और पीछे मुसलमानों की जमात, और आप कहें कि इनमें से जिसको चाहो इमाम बना लो तुम, तो एक मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो जमात की तरह फ्री मुसल्ला जो है वो फ्री स्टाइल का खड़ा नजर आएगा आपको। कोई खड़ा है, कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई जिक्र पढ़ रहा है, सब उलट पलट हो जाएगा। एक तो यही समझ में नहीं आएगा कि उनकी इक़्तिदा की जाए या उनकी इक़्तिदा की जाए या उनकी इक़्तिदा की जाए। वही समय एक आदमी उनकी इक़्तिदा कर रहा है, वो ज़रा तेज आगे बढ़ गए, जो ज़रा सुस्त है उसने कहा इनको छोड़ो ये बहुत भागते हैं, दूसरे की इक़्तिदा कर ली। वो ज़रा बहुत सुस्त है, तीसरे की इक़्तिदा कर ली। थोड़ी देर में कोई भी देख के कहेगा ये जमात नहीं है, ये जमात नहीं है। मुंतशिर भीड़ को जमात नहीं कहते, मुंतशिर भीड़ को उम्मत नहीं कहते। जिस तरह जमात को जमात बनाने के लिए एक इमाम की ज़रूरत है, उसी तरह उम्मत को उम्मत बनाने के लिए भी एक इमाम की ज़रूरत है, एक वली की ज़रूरत है। वो दे दीजिए मोहम्मद। मैंने संजीदा बात आपकी खिदमत में पेश कर दी ताकि आप इस मुल्क में हैं इसे याद रखें। विलायत के मुनकिर, तो उन्होंने कहा कि विलायत का मतलब क्या है। हमने कहा वाज़ेह तौर पर अगर आपको समझना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम शिया इसके कायल हैं कि पैगम्बर के बाद इस्लामी तारीख़ जो है वो गलत रास्ते पर जा रही है, उलटती पलटती, टूटती फूटती, कभी इधर कभी उधर, कभी दाहिने कभी बाएं चली जा रही है। किसी को चैन नहीं है, किसी को सुकून नहीं है, गलत रास्ते पर जा रही है। तो कहने लगे कि सही रास्ता क्या था। मैंने कहा पहले तो ये मान लीजिए कि गलत रास्ते पर जा रही है, कि हाँ तो जा रही है, वरना इतना इंतशार क्यों होता, इतने मुसलमान चारों तरफ से निकाले क्यों जाते। ये उम्मत मरहूमा है, ये उम्मत वस्ता है, अल्लाह ने इन्हें बर्पा किया है इस उम्मत को, और आज इस उम्मत की कोई इज्जत नहीं है। तो हम भी मानते हैं। हमने कहा अगर मानते हैं तो भैया ये बात भी मान लीजिए कि उम्मत ने वो रास्ता छोड़ दिया विलायत का। विलायत का रास्ता क्या है? हमने कहा वो रास्ता गदीर से निकलता था, सकीफा से निकलता, सीधी सी। अब एक बंद सुन लीजिए कि हकीकतों का वही एहतमाम आज भी है,
صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے۔ حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، کہ وارث اسد قلاگیر زندہ ہے، خلیفہ مر گیا لیکن قدیر زندہ ہے۔ میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میں سیدھی سیدھی خلافت ہے نہیں کہیں دنیا میں، اب تھی بہت دن تک قائم رہی، مگر اس کا ختم ہو جانے ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام نہیں تھا۔ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام ہوتا تو آج بھی ہوتا، اللہ کا قائم کیا ہوا نظام جو ہوتا تو آج بھی ہوتا، اور وہ نظام یہ ہے کہ ایک ولی ہو، ایک ولی ہو، پیغمبر کی جگہ کبھی خالی نہیں ہوگی، نبی کی جگہ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اگر نبی کی جگہ خالی ہو جائے تو امت اپنی ذمہ داری ادا ہی نہیں کر سکتی۔ امت قرآن کہتا ہے سیدھے سیدھے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تم کو مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، مرکزی امت بنایا ہے۔ مرکزی امت کا مطلب ساری امتیں چاروں طرف تم کو دیکھیں گی، تم سے سبق لیں گی، تم سے درس لیں گی، تمہارے پیچھے چلیں گی۔ امت وسطیٰ کا یہی مطلب ہے، تم کو امت وسطیٰ بنایا ہے، اور رسول کو تم کو تمام امتوں پر شاہد بنایا ہے۔ تم کو آئیڈیل بنائیں گی ساری امتیں، تم کو مثالیہ بنائیں گی، تم کو نمونہ عمل بنائیں گی، اور رسول کو تم پر شاہد بنایا ہے کہ تم رسول کو دیکھو، زندگی کا طریقہ سیکھو، ان سے رسول سے زندہ کیسے رہا جاتا ہے رسول سے سیکھو، اس کے بعد ساری دنیا تم کو دیکھ کے تمہارا طریقہ اپنائے گی۔ مگر پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں نے کہا اب تو نبی گئے، لہذا وہ اسوہ بھی گیا، وہ آئیڈیل بھی گیا، وہ نمونہ عمل بھی گیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ نمونہ عمل جا ہی نہیں سکتا، نبی گئے تو علی موجود ہے وہاں، نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ذرا سستی پیدا ہو رہی ہے، سن لیجئے کہ مے خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، مے خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ ملا جی تم اپنی ادا میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ جب خلا پیدا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے سامنے خلا ہوگا تو دوسروں پہ گواہ کیسے بنے گی؟ نتیجہ ہے کہ دوسروں کو اپنا گواہ بنا لیا۔ آج مسلمان بھی دوسروں سے سیکھتے ہیں، کچھ امریکہ سے سیکھتے ہیں، کچھ یورپ سے سیکھتے ہیں، کچھ کینیڈا سے سیکھتے ہیں، جو مل جاتا ہے اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ سکھانے کی منزل سے کب نہ جانے کب معزول کر دیے گئے، اسی دن معزول کر دیے گئے جس دن علی کا دامن چھوڑا تھا۔ اور جب علی کا دامن اور پیغمبر نے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں علی کے لیے کہ علی کی وہی جگہ ہے ٹھیک جو نبی کی جگہ تھی، علی کی وہی جگہ ہے ٹھیک جو نبی، یہ سب اجزائے نبوت ہیں۔ یہ سب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ علی کا ذکر کرتے ہیں اور فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کہیں نہیں کم کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہم نبی ہی کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرق اتنا ہے کہ تم نبی کو سمجھے نہیں ہو۔ فرض کیجیے کسی کے دروازے پر پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت درخت کا پیڑ ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، پتیاں سرسبز ہیں، جنہوں نے درخت لگایا تھا جن کے دروازے پر تھا، میں نے کہا حضور ذرا اس درخت کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے پھول اس کے کتنے خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا پھولوں کی تعریف نہیں، درخت کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا پتیاں دیکھیے کتنی سرسبز ہیں۔ میں نے کہا پتیوں کی تعریف نہ کیجیے، درخت کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا شاخیں دیکھیے کتنی سڈول ہیں۔ میں نے کہا شاخوں کی تعریف نہ کیجیے، درخت کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا تنا دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ میں نے کہا تنے کی تعریف نہیں، درخت کی تعریف کیجیے۔ انہوں نے کہا جڑیں کتنی گہرائی میں ہیں۔ میں نے کہا جڑوں کی تعریف نہیں، درخت کی تعریف کیجیے۔ تو وہ یہی کہیں گے عجب آدمی ہو، اگر میں پھولوں کی تعریف نہ کروں، پتیوں کی تعریف نہ کروں،
शाखों की तारीफ न करूं, तने की तारीफ न करूं, जड़ों की तारीफ न करूं, तो दरख्त में बचेगा क्या जिसकी तारीफ की जाए? तो मैंने कहा भाई से जरा हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए। अगर हम अली का जिक्र न करें, फातिमा का जिक्र न करें, हसन का जिक्र न करें, हुसैन का जिक्र न करें, तो शजरे नबूवत में बचेगा क्या कि जिसकी तारीफ की जाए? इसलिए कि खुद पैगंबर ने कहा है अली मेरा सर है, फातिमा मेरा दिल है, हसन हुसैन मेरे दो हिस्से हैं, हसन और हुसैन मेरे दो हिस्से हैं। तो अजीजान गिरामी, इसको कहते हैं विलायत। विलायत जब कहते हैं तो नबी और अली में कोई फर्क नहीं है। वो नबी थे, ये अली थे, ये इमाम थे, वो नबी थे, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया, इन्हें इमाम बना दिया। माहियत दोनों की एक है, फर्क तो है, फर्क तो है। पैगंबर ने कहा या अली मैं और तुम एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, मगर अली ने कहा मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। अली कहते हैं मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, और पैगंबर कहते हैं मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अब दोनों को मिलाया कैसे जाए? दोनों को मिलाया कैसे जाए कि हम उस बात को भी सही मान लें, इस बात को भी सही मान लें। पैगंबर ने कहा मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक और एक है, दोनों की माहियत एक है, दोनों की ये एक और ये एक दोनों बराबर है ना? लेकिन दोनों को एक जगह रख दीजिए, माहियत तो एक है, मगर अब जगह बदल गई है। जब जगह बदल गई तो कीमत बदल गई। अब इधर वाला एक जो है वो 10 के बराबर है, इधर वाला एक जो है वो 1 के बराबर है, यानी ये इकाई है वो दहाई है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो दहाई है। तो ये जगह की वजह से ये कीमत उसकी बढ़ गई है। तो माहियत नबी और अली की एक है। अल्लाह ने एक को रसूल बना दिया, एक को इमाम बना दिया। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद अली तक के बगैर नबी तक पहुंच ही नहीं सकते। होगी जो गम की शाम तो याद आएंगे अली, टूटेगा दिल का जाम तो याद आएंगे अली, फंस जाएगा जो काम तो याद आएंगे अली, लोगे नबी का नाम तो याद आएंगे अली, मुश्किल में जब करेगा ना आकर कोई मदद, कहना पड़ेगा आपको भी या अली मदद, कहना पड़ेगा आपको भी या अली मदद। हर मोड़ पर हयात की जलवा अली का है, काबा अली का, अर्श मुअल्ला अली का है, कुरान की सूरतों में सराफा अली का है, अल्लाह की किताब कसीदा अली का है, इंसानियत की कुव्वत परवाज है अली, हर दौर के ज़मीर की आवाज है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएंगे, अली से है तो जहन्नम में जाएंगे, बचना अली से है तो बस। खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस हमारे चौथे इमाम से मंसूब है, ये मजलिस हमारे चौथे इमाम से मंसूब है। ये सब अज्जाए पैगंबर थे, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन हो, इमाम ज़ुल्ल अब्दीन हो, या सब अज्जाए पैगंबर थे और नबूवत की जिम्मेदारियाँ ये अदा कर रहे थे। नबूवत की जिम्मेदारियाँ अब अलग अलग बात है कि लड़ने वाला सिपाही जानता है कि हम कौन सा हरबा इस्तेमाल करें। पैगंबर ने जैसे अखलाक से काम लिया, अली ने ज़ुल्फ़कार से काम लिया, इमाम हसन ने कलम से काम लिया, इमाम हुसैन ने खून की धारों से काम लिया, सैयद सज्जाद ने आंसुओं से काम लिया। ना अखलाक पैगंबर को कोई शिकस्त दे सका, ना ज़ुल्फ़कार हैदर को कोई शिकस्त दे सका, ना खामे हसन मुश्तबा को कोई शिकस्त दे सका, ना खूने शहीद करबला को कोई शिकस्त दे सका, न सैयद सज्जाद के आंसुओं को कोई शिकस्त दे सका। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए सैयद सज्जाद के कारनामे को अगर आप समझना चाहें तो वो आप समझें कि शिया मजहब, हम शिया हैं यानी हम इमामिया हैं, यानी हम विलायत को मानने वाले हैं। इमामत, तशय्यो, विलायत का मफहूम एक है। तशय्यो का मतलब पीछे चलना, विलायत का मतलब पीछे चलना, इमामत का मतलब पीछे खड़ा होना एक इमाम की। तो तीनों का मफहूम एक है और पीछे चलना है। अब ये हमारा और आपका काम है कि हम सोचें कि हम वाकई पीछे चल रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पैगंबर ने कहा या अली जो तुमसे आगे बढ़ जाएगा वो भी हलाक हो जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो भी हलाक हो जाएगा, जो पीछे चलेगा वही निजात पाएगा। पीछे रह जाना और है, पीछे चलना और है। पीछे चलने का मतलब है हम कोई अमल अंजाम दे तो सोच ले कि अमल अली ने अंजाम दिया है या नहीं, इमाम हसन ने अंजाम दिया है या नहीं, इमाम हुसैन ने अंजाम दिया है या नहीं। अलगरज हम शिया हैं, हम इमामिया हैं, हम मिलाद के मानने वाले हैं, हम बहुत थोड़े से थे, हम बहुत थोड़े से थे। पैगंबर इस्लाम के बाद जितने शिया जहाँ जहाँ थे वो ये सोचते थे कि पैगंबर के बाद अली उस जगह पे आएंगे, दीन जैसे बढ़ रहा है ऐसे बढ़ता रहेगा, माशरा आदिलाना माशरा जैसे अपना दायरा बढ़ा रहा है ऐसे ही बढ़ाता रहेगा। मगर जब उन्हें मालूम हुआ ये नबी की जगह पर अली नहीं आए, वो जगह खाली छोड़ दी गई है, तो उनको धचका लगा, उनको धचका लगा। मौलाए मुत्तकियान 25 साल के बाद आए, उनको ज़रा खुशी हुई, लेकिन असली शियों के साथ सिर्फ नाम के शिया बेशुमार शामिल हो गए, अपने को वो भी शिया कहते थे। मगर जब कुरान बुलंद किया गया लहज़ों पर, तो जो असली शिया थे तो वो हज़रत अली के साथ हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं लड़ सकते, सामने कुरान आ गया है, उसकी बेअदबी हो जाएगी। अली कहते रहे असल कुरान तो मैं हूँ, तुम लड़ते रहो तलवार चलाते रहो। उनका ना इतनी बड़ी बेअदबी नहीं कर सकते, अल्लाह की किताब हमारे सामने, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। जिनके सिफीन का जो अंजाम हुआ आप जानते हैं, उसने शियों का हौसला पस्त किया। इमाम हसन आए, इमाम हसन को ज़ख्मी किया गया, इमाम हसन ने ठुकरा दी खिलाफत, शियों का हौसला और पस्त हो गया। करबला के बाद तो शियों का जो मरकज़ था वही तबाह कर दिया गया करबला में। जब मरकज़ तबाह कर दिया गया तो अब बताइए ये कौम कहाँ जाए। कोई बहुत बड़ी कौम नहीं थी, न इसका मदरसा अलग था, न इसका मस्जिद अलग थी, न इसके स्कूल अलग थे, न महल्ला अलग था, न शहर अलग था, उसी में बिखरे हुए थे। 2-4 मूसल में हैं, 2-4 बगदाद में हैं, 2-4 इराक़ में हैं, 2-4 अंबार में हैं, 10-5 मदीने में हैं, 10-5 मक्के में हैं। कौन कहाँ है ये कोई नहीं जानता था। एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। करबला का वाक़या हो गया, उन्होंने ये सुन लिया इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, नबी की बेटियां बेपर्दा करके लाई जा रही हैं। अब बताइए उनका हाल आलम क्या हुआ होगा। उनका जितना हौसला था तो टूट गया होगा ना। अब बताइए उनको कैसे बचाया जाए, उनके कौमी वजूद को बचाने की कोई तरकीब थी उस वक्त। आप आज 10, 20, 15 आदमी को कहीं से लाइए किसी दूसरे मुल्क से और किसी ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ दूसरी कौम बसती है, 50 साल के बाद आप देखेंगे उनकी सूरत नहीं पहचानी जाएगी, उनकी सूरत नहीं पहचानी जाएगी, उसी में खो जाएंगे, डिज़ॉल्व हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये इतनी छोटी सी कौम थी, इसे तो डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए था। इसलिए कि सब दुश्मन भी थे। अगर वो सुन लेते थे कि ये अली का मानने वाला है तो शहीद भी कर देते थे, कत्ल भी कर देते थे। इस कौम को मिट जाना चाहिए था ना। बच कैसे गई, बच कैसे गई? बस अज़ीज़ान गिरामी, ये सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा का कारनामा, ये सैयद सज्जाद और ज़ैनब कुबरा का कारनामा। ये मजलिस जो है ये किला बना दिया, वरना कोई बचाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला। हमने इन मुल्कों में देखा है, यूरोप में देखा है, कनाडा में देखा है, अमेरिका में देखा है, जो आज से 60 साल पहले आए थे वो बिल्कुल अंग्रेज हो गए हैं। न वो दीन जानते हैं न मजहब जानते हैं। मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा। न दीन जानते हैं न मजहब जानते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ आने के बाद उनके बचने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन अब जो आ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उनको कोई खतरा नहीं है। क्यों? फर्श आला बिछा, फर्श आला बिछा हुआ है। अब आके यहाँ महफूज हो गए, वरना खत्म हो जाते। तो अगर सैयद सज्जाद ने यह न बिछाया होता तो शिया खत्म हो जाते। बिछा दिया, बिल्कुल वही आलम था शियों का। जैसे अंधेरे में पतंगे उड़ते हैं ना, तो उन्हें उनकी मंजिल नहीं मालूम होती कहाँ है, लेकिन एक चिराग जला के रख दीजिए, सब वहां आ जाएंगे और घेर के बैठ जाएंगे। सैयद सज्जाद ने एक चिराग जला दिया तो हम इस पे ये किला था कि जिसमें हम महफूज रहे, एक दूसरे से मिले, दिल की भड़ास निकाली, रोते थे। जैसे ये बेसमेंट में हो रही है मजलिस, ऐसी ही मजलिसें कायम हुई होंगी, इसलिए कि मंजर आम पर तो हो नहीं सकती थी। लोग तलाश करते रहे होंगे, कोई तहखाना है भाई वहाँ चलो, लोगों को बताया यहाँ मजलिस है। और जो शिया था, जब उसे मालूम हो गया कि सैयद सज्जाद ने कहा है मजलिस करने के लिए, तो एक दूसरे से पूछने लगा
کہ بھائی کہیں مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں, کہیں مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں. عزیزان گرامی, آج بھی آپ کسی ملک میں جائیں اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ یہاں کتنے شیعہ ہیں, تو آپ کہیں پتہ نہیں لگا سکتے. نہ کوئی رجسٹر بتائے گا آپ کو, نہ کوئی دفتر بتائے گا, نہ کوئی آفس بتائے گا. اگر پتہ نہ لگانا ہے, بہترین طریقہ ہے انٹرنیٹ پہ ڈال دیجئے کہ آج شام کو ہمارے یہاں مجلس ہے, ہمارا گھر کا فلاں نمبر ہے, فلاں محلے میں, فرش ادا بٹھا کے بیٹھ جائیں گے. شام کو آپ دیکھیں کہ لوگ پوچھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, پوچھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور 2 دن میں آپ کو معلوم ہو جائے گا اس شہر میں کتنے شیعہ ہیں. تو زینب نے جب یہ فرش بچھا دیا تو اور کسی سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن فرش پہ آئے. جب فرش پہ آئے تو دل کھول کے روئے, آنسو نے ان کا زخم کا مرہم بن گئے. آنسو ایک دوسرے کو حوصلہ ملا, ایک دوسرے سے, ایک دوسرے نے دین کی باتیں بتائی. عزیزان کرام, یہاں تک کہ آج ساری دنیا میں پھیل چکی ہے ہماری قوم, ورنہ مٹ گئی ہوتی. کوئی اس قوم کا ہمدرد نہیں تھا, کوئی اس قوم کا بچانے والا نہیں تھا. اور اب تو بعض جگہ شیعہ یوں کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا خوف زدہ ہے کہ یہ قوم اب تک سوئی ہوئی تھی, یہ کیسے ہوا. سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا, شہید سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا, اسیر شیون و ماتم, اسیر وہم و گما, نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا. بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں, مگر اٹھی تو ستم کا زجاج پھینک دیا, اتار کر سر ظالم سے تاج پھینک دیا. بتا دیا کہ شریعت کے پاسباں ہم ہیں, دکھا دیا کہ محبت کے ترجمہ ہم ہیں. رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں, مگر اٹھے ہیں تو پھر تیغ خوفشاں ہم ہیں. ہم ہی یہ وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں, وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ آتے ہیں. قدم ہمارے رہے غم میں ڈگمگا نہ سکے, زمانہ ہار گیا ہم شکست کھا نہ سکے. ہم ایسی آگ ہے دنیا جسے بجھا نہ سکے, ہماری فکر سے سب کا دماغ جلتا ہے. ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے, ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے. مگر